नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। ज़ेलेंस्की के पास कितना टाइम बचा हुआ है, इसकी थोड़ी-सी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ऐसा दिखता है कि इसका टाइम ऑफ बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई, जहाँ पर आप देखेंगे कि भई यूएस और रशिया के बीच में जो रियाद के अंदर एक छोटा-सा समिट हुआ, वहाँ पर जिन जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले एंड वहाँ पर जो कन्वर्सेशंस हुई, उसके बाद हमने एक चीज़ देखी कि भई ट्रम्प का अटैक आया ज़ेलेंस्की के ऊपर। नाउ काफ़ी लोगों को लगा यार ये इसने एकदम से क्यों अटैक करा? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ होगी, ट्रम्प का अटैक क्यों आया इतना ज़ोर से ज़ेलेंस्की के ऊपर और पर्सनल अटैक आना शुरू हुआ, तो इसके पीछे क्या राज़ है? तो आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मार्को रूबियो साहब का, जहाँ पर उन्होंने इसके बारे में थोड़ी-सी बात करी है। तो लेट्स लुक एट दिस वीडियो एंड सी व्हाट डज़ ही हैव टू से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक रेवलेशन निकलता है कि भई ज़ेलेंस्की के साथ इतनी हालत खराब क्यों है और व्हाई इज़ देयर सो मच ऑफ अ प्रेशर? Case, and rightfully so. Look, number one, Joe Biden had frustrations with Zelensky. People shouldn't forget it. There are newspaper articles out there about how he cursed at him in a phone call because Zelensky, instead of saying thank you for all your help, is immediately out there messaging what we're not doing or what he's not getting. I think the second thing is, frankly, I was personally very upset because we had a conversation with President Zelensky, the vice president and I, the three of us, and we discussed this issue about the mineral rights. And we explained to them, look, we want to be in a joint venture with you, not because we're trying to steal from your country, but because we think that's actually a security guarantee. If we're your partner in an important economic endeavor, we get to get paid back some of the money the taxpayers have given, close to $200 billion. And it also, now we have a vested interest in the security of Ukraine. And he said, sure, we want to do this deal. It makes all the sense in the world. The only thing is I need to run it through my legislative process. They have to approve it. I read 2 days later that Zelensky's out there saying, I rejected the deal. I told him, no way, that we're not doing that. Well, that's not what happened in that meeting. So you start to get upset by somebody. We're trying to help these guys. One of the points the president made in his messaging is not that we don't care about Ukraine, but Ukraine is on another continent. You know, it doesn't directly impact the daily lives of Americans. We care about it because it has implications for our allies and ultimately for the world. There should be some level of gratitude here about this. And when you don't see it and you see him out there accusing the president of living in a world of disinformation, that's highly, very counterproductive. And I don't need to explain to you or anybody else. President Trump's not the kind of person that's going to sit there and take that. He's very transparent. He's going to tell you exactly how he feels. And he sent a message that he's not going to get gamed here. He's willing to work on peace because he cares about Ukraine. And he hopes Zelensky will be a partner in that. सो आप यहाँ पर देखते हैं कि भाई किस तरह से मार्को रूबियो ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई हमारी डील हुई थी ज़ेलेंस्की के साथ, लेकिन ज़ेलेंस्की तो पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ दिखती है बेसिकली एक छल-कपट का काम। ज़ेलेंस्की मैं बोलने वाला हूँ उसको, ज़ेलेंस्की ने बोला कि हाँ जी, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट पे अगर वो पलटेगा और आके बाहर कुछ बोलेगा, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो चढ़ेगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन। एंड यहाँ पर देखिए ट्रम्प ने जो उसके ऊपर बोला है कि भाई पहले तो उसको बोला है कि एकदम पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसका लेवल नीचे गिरा है, एकदम गार्डन वैरायटी पॉलिटिकल, जैसे वो ओपोनेंट है उसके अमेरिका में, उसकी तरह उसको ट्रीट कर रहा है। दूसरा उसको बोला कि भाई मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन और डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस। ये काफी स्ट्रॉन्ग उसने वर्ड्स यूज करे, तो इसका मतलब ये है कि ज़ेलेंस्की के ऊपर इस टाइम पे प्रेशर है कि भाई अपने देश के अंदर आप इलेक्शंस कराइए। और इलेक्शंस कराने में होगा क्या, ये सबको पता है कि भाई कोई और आएगा और किसी और के साथ बैठ के वो डील करना चाहेंगे। तो ज़ेलेंस्की का यहाँ पर देखिए जो टाइम है वो थोड़ा लिमिटेड है। टू अ पॉइंट काफ़ी हद तक इसके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं ज़ेलेंस्की के साथ, जहाँ पर द यूएस इज़ पुशिंग हिम टू साइन दिस डील। यार तुम डील-वील साइन करो, उसके बाद कुछ आगे बात करते हैं। नाउ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है इसके ऊपर, जो मैं आपके साथ में रखूँगा अभी थोड़ी देर में। बट द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि अमेरिकन्स इनको बोल रहे हैं कि आप सिंपल स्टेट आप ये डील साइन करो ताकि हम आपको उसके बाद आगे पैसे दें। व्हिच साउंड्स फेयर, बट एट द एंड ऑफ इट अमेरिका ने इसको इस कचरे के अंदर डाला है, तो इट्स अ लिटिल अनफेयर इन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। बट वैसे भी देख लीजिए, ये दिस फाइट इज नॉट अबाउट यूक्रेन, ये फाइट है पूरा एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वर्सेस जो नया इकोसिस्टम आ रहा है उसकी वजह से। यूरोप यहाँ पर खड़ा हुआ है, यूरोप बोलता है भैया मैं ज़ेलेंस्की की मदद करूंगा, मैं उसको पैसे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वहां पर जाने से पहले मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, द क्लॉक इज एक्चुअली टिकिंग फॉर ज़ेलेंस्की, और ये ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर सुनते हैं माइक वॉल्ट्स ने क्या बोला, उसके बाद मैं आपको अपनी एनालिसिस पूरी तरह से बताता हूँ। लेट्स लिसन इन। सीपीएसी की जो मीटिंग थी उसके अंदर इन्होंने get Zelensky, President Zelensky, to cooperate. Yeah. Well, so first, and this is the part that the media just wants to ignore, it was Zelensky last September as part of his victory plan. It was Zelensky that proposed, hey, let's go into a partnership together. Right. If the United States will invest in us, we have aluminum, we have gallium, we have tritium, we have all of these rare earth minerals that the modern economy needs. A lot of them are not fully developed. They need investment. President Trump's a deal maker. And so now President Trump
proposes the deal, Right. And sent our Treasury Secretary all the way out to Kyiv to propose it, and then we get this rhetoric in the media. Look, here's the bottom. सो बेसिकली अगर आप इससे अभी तक जो हमने देखा है उसके ऊपर आप देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं, भाई ये तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का आइडिया था, तो अभी ये जो पीछे भाग रहे हैं ये तो ज़ेलेंस्की का अपना आइडिया है, ये क्यों पीछे क्यों भाग रहा है अभी? लेट्स लिसन इन फर्दर। Line, President Zelensky is going to sign that deal. And you will see that in the very short term. And that is good for Ukraine. What better could you have for Ukraine than to be in an economic partnership with the United States, number one? What better could you have for Ukraine to stop the killing, number two? And you know what? We have an obligation to you all, the American taxpayer, to recoup the hundreds of billions of dollars that have been invested in this war. Because you know what? नाउ यहाँ पर आप इस रेटरिक को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कि साहब बड़ा क्लियर रेटरिक है कि देखो यार ऐसा है, अमेरिका ने बहुत पैसे लगाए हैं इस यूक्रेन के अंदर और हमको उस पैसे का कुछ वैल्यू चाहिए। एंड उस वैल्यू का मतलब क्या है कि रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सब चीजें हमको जो भी वहां पर है वो चाहिए। हमने देखा जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई ये ज़ेलेंस्की का अपना आइडिया था, तो ये अभी जो पीछे भाग रहा है उसमें कोई इनको सेंस दिखता नहीं है। सो एज आई सेड, क्लॉक इज टिकिंग एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज़ेलेंस्की के ऊपर इलॉन मस्क का भी एक बड़ा गंदा सा कमेंट आया, पर्सनल कमेंट, कि भाई ज़ेलेंस्की द एक्टर हैज बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। ज़ेलेंस्की द एक्टर हैज बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। इसके बारे में आप जो मर्जी मतलब निकाल लीजिए, यू विल सी दैट देयर इज अ बिट ऑफ अ क्राइसिस। ट्रंप ऑन द अदर हैंड, उसको पुशबैक मिल रहा है अमेरिकन कंजर्वेटिव्स में से और ये रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स दोनों तरफ से मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो ये इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, आप ये पूरा ये कचरा नहीं कर सकते। ये सब प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो ग्रेवी ट्रेन है और जो जितना पैसा वापस आता था अमेरिकन सिस्टम के अंदर आफ्टर गेटिंग मनी लॉन्ड्रेड इन यूक्रेन, वो रुक जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बहुत लोगों को दर्द होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ एक चीज यहाँ पर ज़ेलेंस्की के एग्जाम्पल को देख के बड़ा क्लियर दिखती है कि भाई किस तरह से गहरे राज्य के यूजफुल इडियट्स को ट्रीट किया जाता है। और ये मैं आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। आप लोग सारे स्मार्ट हैं तो मैं इसके ऊपर ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, बट यूजफुल इडियट्स जो होते हैं गहरे राज्य के, जो यूज किए जाते हैं रजीम चेंज करने के लिए, उसके बाद खुद सत्ता में बैठते हैं, उनकी हालत क्या होती है आपके सामने बड़ा क्लियर है। यूरोपियन यूनियन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने बोला कि हम $20 बिलियन का पैकेज देंगे कीव को, और काफी हद तक एक पीछे खड़े होने की बात खड़े करने की सोच रहे हैं। और यूरोप वाले इस टाइम पे थोड़ी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ना यहाँ पर फ्रांस से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई कि एक यूक्रेनियन डिफेंस ऑफिशियल है जिसने $46 मिलियन चुराए हैं, ठीक है, जहां से उसने $2.5 मिलियन का एक विला खरीदा है, $6.5 मिलियन का एक वाइनयार्ड खरीदा है, 27 लैंड के प्लॉट्स खरीदे और $1 मिलियन ईच। और इसके काफी हद तक एविडेंस भी फ्रेंच पुलिस ने दिखाए हैं और फ्रेंच मीडिया भी इसके बारे में बात करना शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का इस टाइम पे इतना हालत खराब है कि वो बाय द वे सऊदी अरेबिया यूएई जाने वाला था, यूएई गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया कहता मैं नहीं जा रहा क्योंकि वहां पर अमेरिका और रशिया की बातें हुई हैं। सो यू कैन इमेजिन यूरोप में वैसी हालत खराब है एंड ट्रंप इज गोइंग हेड ऑन विद यूरोप। और इसके ऊपर हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रंप यूरोप के पीछे जा रहा है और क्यों। ये एक चीज हमको समझनी है। इस टाइम पे यूरोप का अपना जो लॉस होने वाला है एल्यूमिनियम एंड स्टील के टैरिफ से, उसको करीब करीब नंबर 1 लगाया जा रहा है कि $28 बिलियन यूरोस का उसको एक घाटा पड़ेगा। कल यूएस ने एक रेजोल्यूशन डाला ऑन द अभी जो तीसरा एनिवर्सरी आने वाला है यूक्रेन वॉर का, उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन डाला गया कि भैया ये जो तीसरा एनिवर्सरी है इसके ऊपर थोड़ा हमको एक ये बोलना चाहिए कि भाई पूरी तरह से ये वॉर बंद हो और सब लोग बैठ के बात करें। और ये एक सिंपल रेजोल्यूशन है जहां पर रशिया के बारे में जो कंडेमनेशन होती थी वो रेजोल्यूशन के अंदर नहीं है। यूक्रेन का जो रेजोल्यूशन उसने डाला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वहां पर रशिया के ऊपर काफी भारी लैंग्वेज है। और यूएस इस टाइम पे पुश कर रहा है यूक्रेनियन जो रेजोल्यूशन है उसको जरा ब्लॉक करने के लिए। तो ये बड़ा क्लियर दिखता है कि यूएस पूरे आंख बंद करके जिस तरह से पहले यूक्रेन के पास भागता था वो नहीं हो रहा है। और यूक्रेन को आपको दिखता है, और ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आप ट्वीट करा। उन्होंने बोला कि मैं लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरा एक डील में हूं और यहाँ पर हमको एक यूनाइटेड यूरोपियन पोजीशन लेनी पड़ेगी। और कहता है कि ये जो वॉर चल रही है ये यूक्रेन में चल रही है जो यूरोप के अंदर है, और यूक्रेन और यूरोप को भी नेगोशिएटिंग टेबल में बैठना पड़ेगा अमेरिका के साथ। सो दे बेसिकली वांट अ चेयर एट द बिग टेबल जहां पर उनको मिलना नहीं है। दिस इज बेसिकली यूरोप ट्राइंग टू से कि सही भैया ऐसा है, अगर हम टेबल पे नहीं होंगे तो आप देखिए फिर आप तो बेच दोगे पूरे उसको, ज़ेलेंस्की को बेच दोगे, यूक्रेन को बेच दोगे। ऐसा पूरा नैरेटिव वो मीडिया के अंदर चला रहे हैं और लेफ्टिस्ट मीडिया है इस टाइम पे ये पूरी चीज चल रही है वहां पर।
दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां से एक पीस वैल्यू निकलेगा, जो वो पीस वैल्यू जाएगा ब्रॉडर रिलेशंस के ऊपर, ब्रॉडर यूरोपियन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर, और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो कदम रखने की बात चल रही है उसकी तरफ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एंड यहाँ पर मैं तीसरी बार ये रिपीट करूंगा कि गहरे राज्य के पप्पुओं के साथ क्या होता है, ये सामने एक बड़ा क्लियर एग्जाम्पल निकल रहा है। तो ऑब्वियसली कई पप्पुओं को ये देख के थोड़ा डर लगेगा। जो हमारा एक पप्पू बैठा है एक बांग्लादेश में, उसको भी इस चीज को देखना चाहिए, बट आई डोंट थिंक उसको उसके पास इतनी अकल है कि वो चीज को देख पाएगा। इस टाइम पे उसके भी फोन कॉल सिर्फ यूरोपियंस उठाते हैं, तो आई एम श्योर यूरोपियंस उसको बता रहे हैं कि भैया ये हो रहा है, तो जरा उसको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि ये जब पप्पूगिरी गिरती है नीचे, किस तरह गिरेगी और कहां पर जाके गिरेगी। ज़ेलेंस्की मेरे हिसाब से बहुत जल्दी भागेगा, या तो वहां पर इलेक्शंस होंगे या ये भागेगा, क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच में, दोनों के बीच में अगर एक सिंपल सा अग्रीमेंट है कि ज़ेलेंस्की हैज टू गो, एंड उसके तहत ये लोग अभी आगे काम करेंगे। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग ही लास्ट। आई डोंट थिंक इट्स बियॉन्ड अ फ्यू वीक्स, बिकॉज जिस तरह की एंटागनिज्म बनी है डोनाल्ड ट्रंप और इसके बीच में, आई डोंट थिंक दैट्स एन इजी थिंग टू जस्ट सॉल्व, और ये खत्म नहीं होगी। ट्रंप एक बार ही किसी के अगेंस्ट घुस जाता है तो आपने देखा ये किस तरह फिर वो हाथ धो के पीछे पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट। एक वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिशन 400K के हिसाब से मैं आपको अभी लाइव स्कोर बताऊं, इट इज 399,300। टोटल 700 सब्सक्राइबर हमको चाहिए टू रीच द मिशन 400K मार्का। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।